Hello student, this is your social science teacher from San Norbert Senior Secondary School, Damoh. Today I am going to teach class 9 subject social science civics lesson number 1. Our topic is what is democracy, why is democracy. First we will know what is democracy. In this chapter, build on a simple definition of democracy. Step by step we work out the meaning of democracy of the term involved in this definition. The aim here is to understand clearly the minimum feature of democratic form of government. Here some important point of this chapter. First of all, we know what is democracy. Democracy is taken from a Greek word demokratia. In Greek, demo means people and kratia means rule. Democracy is said to be form of government of the people, for the people and by the people. In simple words, or we can say in simple definition, democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें लोग अपना नेता स्वयं चुनते हैं. नाउ दिस डेफिनेशन रेज मैनी क्वेश्चन. मीन्स हु आर द रूलर, इसमें रूलर कौन है ना, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस एंड व्हाट आर द पीपल हु elect the ruler. Finally, what kind of form of government it is. So, to solve this all question, we have to learn the features of democracy. Number 1, decision making power must with those elected by the people. This feature has explained in NCERT with the example. In Pakistan, 1999, President Musharraf had the power to dismiss nation and state assembly. So, the final power rests with the army and general himself. So, we cannot call it democracy. But now Pakistan has elected government. मतलब अगर कोई भी कंट्री बोलती है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उनको इन फीचर्स को फुलफिल करना पड़ेगा. जैसे कि पाकिस्तान ने बोला कि उनके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट जो वहाँ का रूलर था उसने पावर आर्मी के हैंड में दे दी. सो दैट इज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. नंबर 2, मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. मीन्स इलेक्शन शुड बी डन in very fair manner. Number 3, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Like in Saudi Arabia, women do not have the right to vote. So this is not called as a democracy. Okay. Now point number 4, government rule within limits set by the constitutional law and citizens. It means a democratic government cannot do what it like आफ्टर विलिंग द इलेक्शन. ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जीतने के बाद सरकार जो चाहे वो कर सकती है. उसको कुछ भी करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा. These all are the main feature of democratic government. If any country did not fulfill these features, then they cannot comes under the category of democratic government. Now we will move towards the arguments against the democracy. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. वैसे ही डेमोक्रेटिक के गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स फेवर में हैं और कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट में. फर्स्ट वी विल लर्न द पॉइंट विच आर अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नंबर 1, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. लीडर्स जो है बार बार चेंज होते रहते हैं, इसके कारण इंस्टेबिलिटी नहीं होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. नंबर 2, लीड टू डिले ड्यू टू द कॉन्स्टेंट कंसल्टेंसी. मतलब लॉट्स ऑफ डिसीजन लेने के लिए लॉट्स ऑफ डिस्कशंस होते हैं, इसके कारण कभी कभार बहुत डिले भी हो जाता है. समटाइम इट लेट बैड डिसीजन. अब हर समय उनके डिसीजंस करेक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए कई बार बैड डिसीजन भी ले लेते हैं जो उनके फेवर में हो रूलर्स के. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट एनकरेजेस करप्शन एज इट बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन.
कई बार जो पोलिंग बूथ होते हैं उनको ही चेंज कर दिया जाता है, या फिर उन जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको वोट करने के लिए नहीं दिया जाता है, और कई बार पैसों से भी वोट्स को खरीदा जाता है। तो इट एनकरेजेस व्हाट? करप्शन। नाउ पॉइंट नंबर 5, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव डिसीजन एबिलिटी। जो कॉमन पीपल हैं उनको राइट्स नहीं रहते हैं कि वो डिसीजन ले सके। सो दीज ऑल आर द पॉइंट विच आर अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी विल सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, मतलब अब हम दूसरा पहलू देखेंगे इन विच आर्ग्यूमेंट्स आर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नंबर 1, इट इज मोर अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिटीजन्स के ज्यादा फेवर में रहता है। नंबर 2, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मीन्स सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, कई बार सभा की जाती है, कई बार सेम पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, तो जो डिसीजन मेकिंग रहती है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 4, इट प्रोवाइड द मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। एज यू नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, मतलब हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, तो हर किसी के उनको रिस्पेक्ट करना, उनके रिलीजन को, उन्हीं के बेस्ड पे डिसीजन लिए जाते हैं, जो कि डेमोक्रेसी का एक फेवरेबल पॉइंट है। नंबर 4, इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। And point number 5, it allow the citizens to correct their own mistakes। मतलब एक बार गवर्नमेंट बन गई तो नेक्स्ट ईयर आफ्टर 5 ईयर वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि अगर उनने गलतियां की हैं तो सिटीजन्स उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे अपने रूलर के उसमें। सो ये अलाउ करता है हमको हमारी ओन मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए। थैंक यू। I hope my all students are able to understand this chapter. Please revise the content, and your homework is to learn the question and answer given back of the lesson.